السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں جی آپ؟ حکایات سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے جی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بک وہ ریڈ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کیا نام ہے جی آپ کا؟ ہمایوں خالد۔ ہمایوں خالد۔ تو کس طرح سے آپ یہاں پہ روٹین گزارتے ہیں اور کس وقت آتے ہیں لائبریری؟ ارلی ان دی مارننگ 8 بجے میں لائبریری آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، 7 بجے آ جاتا ہوں جلدی، اور یہاں پہ بکس ریڈ کرتا ہوں، اور جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں انہیں بکس پرووائڈ بھی کرتا ہوں۔ اچھا، آپ کی یہاں پہ ذمہ داری بطور لائبریرین ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو آپ صبح آتے ہیں اور پھر شام تک جو بھی 2-3 بجے تک، کتنے بجے تک چلتی ہے؟ میں 4 بجے کے بعد آف کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ لائبریرین ہیں؟ یس۔ آپ تو اس کا مطلب ہے کہ کتابوں کے ساتھ خود بھی جو ہے بزی رہتے ہوں گے اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہوں گے؟ جی، بائی چوائس سپرنٹ صاحب کو ریکویسٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے مجھے یہاں پہ لگا دیا۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ BS آنرس ان بایولوجیکل آپ سائنس۔ پڑھے لکھے ہیں؟ اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ 16 ایئرس۔ 16 سال۔ اب مطلب کہ آپ نے 16 سال پہلے BS آنرس کیا تھا یا یہاں پہ رہتے ہوئے کیا؟ 16 سال پہلے کیا تھا فارمر کرسچین چارٹر یونیورسٹی لاہور سے۔ FC سے؟ جی، FC کالج۔ اور ابھی جو BS آنرس کیا وہ آپ نے یہاں پہ اپنی سزا میں کیا ہے، قید میں کیا ہے؟ نہیں، باہر کمپلیٹ کیا تھا میں۔ اچھا، باہر کمپلیٹ کر کے آئے تھے، مطلب کہ آپ نے 16 سال پہلے ہی اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی؟ جی ٹھیک ہے، تو کس کیس میں آنا ہوا یہاں پہ؟ میں مرڈر کے کیس میں آیا تھا، پھر میں سزائے موت ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ رحم کریں۔ قتل کے کیس میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کون سے سن کی آپ بات بتا رہے ہیں؟ سن 2009 میں میں سے مرڈر ہوا تھا۔ کیا وجہ کیا بنی؟ کچھ فیملی میٹر تھا جس کی وجہ سے میں نے اسٹیپ اٹھایا تھا۔ کیا لگتا ہے کہ اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا؟ ہاں، میں ہجرت کر جاتا اور کسی دوسرے ملک چلا جاتا، دوسرے شہر چلا جاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی، کس طرح سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ اب آپ نے 16 سال اس کو سوچا تو بہت زیادہ ہوگا۔ جی۔ کیا آپ اس ٹائم کرتے یا کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی اس سچویشن میں ہو تو کیا کرے؟ اگر کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ آپ سمجھیں کہ آپ سے نہیں برداشت ہوتا، نہیں کنٹرول ہوتا، تو آپ کو پلیز تبدیل کر دینی چاہیے، جگہ تبدیل کر لیں۔ وہ جگہ سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ آپ دوسرے شہر چلے جاؤ، دوسرے ملک چلے جاؤ۔ جب آپ ساتھ رہو گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو، آپ نہیں بھی کرنا چاہو گے، لوگ آپ کو پمپ کریں گے، اکساتے ہیں، ٹیز کریں گے، پن اپ کریں گے، تو آپ ہائپر ہو کے یہ اسٹیپ اٹھاؤ گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو لوگوں نے مجبور کیا، ٹریگر کیا؟ جی، کچھ ریلیٹیوز نے اور کچھ لوگوں نے بھی۔ معاملہ کیا تھا؟ کوئی رشتہ داری کا تھا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ ایکچولی they killed my brother, my step brother, killed my real brother with the wish of my father. آپ کے اسٹیپ بردر؟ My step brothers killed my real brother. اوکے، with the wish of my father. اچھا، تو آپ نے کیا کیا؟ Police killed my step brothers in an encounter, and I am in a case of my father. اوکے، تو آپ نے اپنے والد صاحب کا قتل کیا ہوا؟ Yeah. او اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے۔ تو آپ اچھا آپ کے حوالے سے شاید بات انہی کی بات ہو رہی تھی؟ جی، انہی کی بات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ آپ نے تو بڑا امپروو کیا ہے، آپ کے شاید یہاں پہ تھیراپیز ہوتی رہیں اور آپ کے سائیکولوجیکل، اور آپ سے سنا ہے کہ 16 سال آپ سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا؟ Yeah, this is true. آپ سے 16 سال کوئی ملنے نہیں آیا؟ نہیں۔ اور آپ سزائے موت ہوئے تھے اپنے والد کے کیس پہ؟ جی۔ ہو کہ آپ سے یہ ہوا اور پھر آپ سے 16 سال کوئی ملنے نہیں؟ کتنا مشکل تھا سزائے موت کاٹنا، اور کوئی آ ہی نہیں رہا تھا ملنے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اینی پرزنر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ قبرستان جب جاتے ہیں، وہاں پہ پانی کا چھٹا لگاتے ہیں اور اگربتی لگاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں تو قبر تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیڈ میں یا کسی پرزنر سے کوئی ملنے آتا ہے تو وہ اس کا 10-15 دن کے لیے وہ نیا ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ جیل کاٹ سکے۔ لیکن اگر کسی پرزنرس کو کوئی ملنے نہیں آئے گا نا، تو اس کے اندر احساس کمتری آئے گا، انفیریٹی کمپلیکس آئے گا، غصے سے جنونی پن آئے گا، چڑچڑا ہوگا۔ اس طرح کے مسائل سے آپ بھی دو چار تھے؟ بہت زیادہ۔ اور اس میں مجھے کیونکہ عمیر بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے پھر ان کے کچھ سیشن کروائے، پھر انہوں نے بڑا اچھا امپروو کیا، اور مجھے پتہ لگا کہ آپ کی ابھی سزائے موت ٹوٹی ہے نا؟ 2 months 2 مہینے ہو گئے، 25 months بیک۔ جی 2 مہینے پہلے میں نے یہ جوائن کیا۔ کیا مطلب کہ چینج آیا کہ آپ 16 سال سزائے موت کے خوف کے نیچے آپ نے قید کاٹی، جی، اور جب پھر عدالت نے کہا کہ نہیں چلیں جی ان کی جو ہے 25 سال میں کنورٹ کر دیں؟ اب 2 مہینے پہلے جب نیچے آیا ہوں نا،
तो ये तो नहीं मैं कह सकता कि मुकम्मल ज़िंदगी में आ गया हूँ, जैसे मैं लाहौर चला गया हूँ अपने शहर, लेकिन ये है कि आधे लाहौर में आ गया हूँ। ठीक है। लाहौर इज़ माई सिटी। हाँ। यानी कि अब कितनी कैद रह गई आपकी अब? 4 months लेफ्ट। अच्छा, फिर तो अच्छा, आप इसलिए मुझे कह रहे थे सी यू इन लाहौर। जी आप आए तो ज़रूर इंशाल्लाह, आप मुझे वक्त दीजिएगा मिलने का और हम आपके साथ लाहौर घूमेंगे। क्या याद है आखिरी चीज़ लाहौर की? लाहौर का फोर्ट्रेस स्टेडियम बहुत याद आता है। अच्छा। माल रोड बहुत याद आता है, बिकॉज आई एम अ ट्रू लाहौरी। अच्छा। लाहौर रन्स इन माई ब्लड। अच्छा, और क्या कोई खाबा अगर याद हो, कोई खाबे शाबे? फजल एक रेस्टोरेंट है। अच्छा। पीसी होटल। अच्छा। अवारी एम्बेसडर। ठीक है। अच्छा, वो उस लम्हे का क्या खौफ होता है कि जब आपने देखा कि आपसे इंतहाई कदम उठ चुका है, लाश पड़ी हुई है और पुलिस आ रही है, क्या खौफ था उसका कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या क्या फीलिंग क्या थी? हाँ, मर्डर करने के बाद काश मैं मुझसे ये काम ना होता, मुझसे नहीं होना चाहिए था। गिल्ट बहुत बड़ा होगा। बिकॉज ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई रियल फादर। काश मैं हिजरत कर जाता और साइड पर हो जाता है। आपके स्टेप ब्रदर ने आपके वालिद साहब के कहने में आपके रियल ब्रदर का कत्ल किया, क्यों किया? उनकी भी तो सगी औलाद थी। मैं तो छोटा था, बच्चा था। क्या आई थी आपकी? उस वक्त मैंने FSC की थी, प्री मेडिकल में, 18 years 19 years। ठीक है। तो उनके क्लैशेस चल रहे होते थे। अच्छा, कितना अर्सा इस रिग्रेट में रहे, या अभी भी उस चीज़ को याद करते हैं तो मतलब परेशान हो जाते होंगे कि यार मेरे वालिद का मेरे हाथ से हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी ना ऐसे भी किसी भी शख्स से नफ़रत करती है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि जिसको भी पता चलता है ये बात कि ये इस केस में है, तो जाहिर सी बात है लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जब कैदियों को पता लगता था तो क्या रिएक्शन होता था? कैदियों भी सामने तो नहीं करेंगे, पीठ पीछे बात करेंगे। ठीक है। अभी जब 16 साल बाद सुना कि जब आपकी सजाए मौत टूटी, तो आपके एक स्टेप ब्रदर आपसे मिलने आए। कितने अरसे बाद? 16 साल बाद? इसको मैं 16 साल बाद आया फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? फीलिंग क्या थी? बेहतर लगा है। और उसके बाद यानी कि आप उसको मिलना चाह रहे थे इतने अरसे से? जी, मैं उसे कॉल किया करता था PCO से। मैंने उसका नंबर फीड करवाया हुआ था कोटलप्पा जेल में भी। तो उठाते थे कि नहीं उठाते थे? वो साल बाद उठाता था। डाइवर्ट लगा होता है, क्या लगा, कॉल ब्लॉक लगी, कॉल ब्लॉक बोलते हैं। मतलब आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे? हाँ, वो साल बाद उठाता था, थोड़ा सी बात करता था। ठीक है। फिर मैं साल लगा रहता था, शायद उठाए। आपके रियल ब्रदर क्या हैं अब? कोई हैं वालदा या कुछ? जी, उनसे नहीं रब्ता होता? मेरे 2 रियल ब्रदर हैं। मेरा रब्ता 3.5-4 साल से नहीं है उनसे, 4 साल से नहीं है, भाई से रब्ता है। ठीक है जी। तो मुश्किल हो जाता है कि जब कोई प्यारा पीछे भी नहीं आ रहा होता? बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैदी वो कैदी काटते हैं जिनके पीछे कोई मुलाकात पर ना आए, वो कैदी कैद काटता है। और आपने वो काटी? हाँ, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। भाई आए तो क्या फीलिंग क्या थी? सुना है कि वो बता रहे हैं कि आप तो उनसे लिपट के रोते रहे, बातें करते रहे। हाँ, मैंने उसका नंबर भी फीड करवाया, बात भी होती है। आप उन्हें 16 साल बाद ही मिले थे? जी, 16 साल बाद मिले? 16 जी। अच्छा, वो भी रो रहे थे? हाँ, फिर दोबारा वो अब आते हैं मुलाकात पर, तो वो जज्बात ऐसे ही होते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था जिसकी, और हमने भी तुम्हें इसलिए नहीं किया कि हमें सोसाइटी कह रही थी या रिश्तेदार कह रहे थे। बहुत से ऐसे केसेस में फैमिली माफ़ कर देती है, आपकी केस में नहीं हुआ? हाँ, तो जिस मैं ये बात पे हैरान हूँ कि मेरी फैमिली में, यानी कि मैंने जितने भी केसेस देखे हैं अब तक तीनों जेलों में, 2 साल 4 साल 5 साल बाद ना फैमिली माफ़ कर देती है। उसकी एक वजह है। जब मुझे तफ्तीशी कैंप जेल छोड़कर जा रहा था गाड़ी में, अब वो DSP हो गया, खालिद खुर्सी, मोहल्लेदारी में इलाके में, उसने एक बात कही थी कि मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली में ना कुछ समझदार बंदा नहीं देखा। अगर कोई समझदार बंदा होता तो मैं आज तुम्हें जुडिशियल ना करने आ रहा होता कैंप जेल लाहौर। लेकिन आपसे भी तो एक गलती बहुत बड़ी हो गई थी ना? हाँ। आपको क्या लगता है कि आपको लोगों ने मजबूर करके ये करवा दिया था कि यार वो तेरा भरा मारता तो तेरी गैरत कितने, इस तरह की चीज़ें थी? हाँ, ये है रिश्तेदारों की तरफ से भी और इलाके के लोगों की तरफ और से। आप उस बचपने में फिर इंतहाई कदम उठा देते हैं। हाँ, वालिद साहब की याद आती है, या उनका वो आखिरी चेहरा जहन में कहीं है? समटाइम आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपने उस चीज़ के साथ रहना सीख लिया होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अभी कोई काम धंधा आता है आपको? अभी क्या करेंगे बाहर जाके?
It's a very difficult question for my kind of prisoner. इसने सारा बचपना यहाँ पे गुजारा हुआ। I lost everything, every relation. And जब भी किसी ने मुझे कोई परेशान करना हो या तो ऐसा सवाल वो पूछ लेता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बाहर आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा अगर आप मेरे से मिलना चाहें। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बाहर निकल के क्या काम करेंगे या कहाँ जाएंगे, क्या प्लान किया हुआ है अब? क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि कुछ माह ही रह गए हैं, अब आपने बाहर तो जाना है इंशाल्लाह। I have 4 to 5 friends in Lahore. अच्छा, राब्ते में Yeah. दोस्त आते हैं यहाँ पे पीछे मुलाकात में? Friends support me. अच्छा, ठीक है। हालांकि नॉर्मली केसेस में फ्रेंड्स नहीं आते, कहते हैं कि भाई बस ठीक है। जी, एक दोस्त है जिसने 16 साल से मुझे सपोर्ट किया हुआ है अभी तक। वो आता है, अभी 1 साल से नहीं है, लेकिन वो पैसे हर महीने भिजवाता है मुझे। ठीक है, मतलब कि आपको पता है कि उस दोस्त के पास जाऊंगा और फिर वो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट कर देगा। यही है। और किसी भी किस्म का यानी कि ब्लैंक है, अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था बैठा हुआ घंटा पहले। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। आप आएँ तो आप ज़रूर हमारी टीम से रब्ता करें या मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह लाहौर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अतीक भाई, मैं आया तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत कम जो है सज़ा रह गई है, तो सी यू इन लाहौर। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि मेरी उम्र कैद थी, अब उम्र कैद कन्वर्ट हो गई, इससे पहले सजाए मौत थी और सजाए मौत में ये 16 साल रहे हैं। ये अभी इन्हें सुप्रीम कोर्ट से आपकी हुई है? सुप्रीम कोर्ट से मेरी सजाए मौत कन्वर्ट हुई है लाइफ इम्प्रिजमेंट में। ठीक है, और चूंकि ये बहुत लंबी सजा काट चुके हुए थे तो अब बहुत ही कम रह गया। और इनके हवाले से आपकी बात सुप्रीटेंडेंट जेल भी कर रहे थे, आपके हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस लड़के ने बड़ा ग्रूम किया अपने आप को, इसने बड़ा सीखा है और इसका जो रवैया था वो बहुत चेंज हुआ है जब मैं आया था तब से लेके अब तक। बिकॉज ऑफ सुप्रीटेंडेंट साहब, he is very decent and excellent man. He is 16 superintendents in different jail of Punjab. ठीक है, But Mr. Mio Marukram is like a friend, is like a brother. ठीक है। He know how to change the behavior and of prisoners. ठीक है। He treat with love. ठीक है। आपने बड़े नशेबो फराज देखे होंगे, तो क्या रिफॉर्म्स आई हैं पिछले 2, 3, 4 साल में? या शुरू की जेल कैसी जेल थी? At one time, only 1 hour walking time in a para. ठीक है। Now jail reform, because of jail reforms, सब कुछ तब्दील हो गया है। ठीक है। बहुत ज़्यादा 3 साल के अंदर तो जेल खाना जात में इतनी तब्दीली आई है कि बहुत ज़्यादा PCO फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, खाना सुना बड़ा अच्छा मिल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बेहतर है काफ़ी। अच्छा, जब आप सजाए मौत थे तो कभी ऐसा लगा कि यार इन्होंने मुझे जो है ले जाना है, या कोई आपके साथ से कैदी लेके गए? जी, कोट लखपत जेल में मेरा एक दोस्त हैंग हुआ था लास्ट। हम सेल में इकट्ठे थे तो एक दिन पहले उसको अलहदा कर दिया था। ओहो। तो आपकी क्या कैफियत थी? मैं बीमार हो गया था 15 दिन के लिए। और उसकी क्या कैफियत थी? अब वो बात, मैं ना उसको मजाक से ना पंच मार रहा था पीछे। मैंने कहा था अगर तुम्हें 100 पंच मारे तो मुझे माफ़ कर दें, फिर बताओ। कहता यार मुझे 200 मार लो, मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है। कोई आखिरी क्या बात हुई उनके साथ जब उन्हें लेके जा रहे थे? आखिरी कोई पैगाम दे के जाते हैं या क्या कह के जाते हैं, मिल के जाते हैं क्या? जी, मिल कर जाते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने रात को 2 बजे पैगाम भिजवाया मुलाजिम से। चाय भिजवाई थी, वैसे तो खाते पीते नहीं है, लेकिन चाय भिजवाई थी कोट लखपत जेल में। तो दुआ में याद रखना। हाँ, और था। उसकी जो सज़ा का कहीं ना कहीं आप पे असरअंदाज होता है कि क्या माहौल क्या होता है कैदियों का? बाकी अफसोस होता होगा है? बहुत प्रेशर, बहुत 2-3 दिन खाना डिस्टर्ब हो जाता है। आपको कभी लगा कि आपको भी ना कर दें, लटका ना दें? सम टाइम ख्याल आता था, लेकिन अल्लाह से एक ही दुआ करता था हमेशा कि या अल्लाह मुझे ना सजाए मौत से उम्र कैद कर दे। लोग कहते थे बरी की दुआ मांगा कर, बरी क्यों नहीं मांगता? मैं कहता नहीं, मुझे उम्र कैद ही कर दे, इतना ही कर दे। चलें, बड़ा अच्छा लगा अतीक आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपके लिए हमायो खालिद, सॉरी अतीक से हम पीछे मिल के आए थे। हमायो भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। कोई मसला तो नहीं, हम ये गुफ्तगू लगा लें? नो, ठीक है। और आप आएँ तो आप ज़रूर मिलने आइएगा और मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, ठीक है? जी। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। बड़ा लंबा अरसा ये जेल काट चुके हैं और गलती किसी से भी हो जाती है। इनसे बात करने का मकसद और मतलब ये था कि बहुत से लोग जो कोई भी गलती कर बैठते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सोचने का वक्त मिलता है कि यार इसको अवॉइड किया जा सकता था, इसको इससे किसी तरह जो है बचा जा सकता था। तो यहाँ पे जब ये लोग कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उससे बहुत से लोग इबरत पकड़ते हैं। सजाए मौत जब सुनाई गई तो क्या कैफियत क्या थी? जिस वक्त जज ने सज़ा सुनाई थी तो आंसू निकल आए थे आंखों से। ठीक है। और फैमिली वाले वहाँ पे थे आपके? नहीं, मैं अकेला था। ठीक है। फैमिली वाले पीछे नहीं आ रहे थे? कोई भी नहीं।
اور کیا آپ بتا رہے ہیں, کچھ شعر سنایا تھا آپ نے؟ ہاں وہ بلڈنگ پہ روز آتے تھے نا, روز عدالت آتے تھے, تو وہ میں بلڈنگ کی طرف دیکھ کے کہا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے آج ہم نکلے. تو اس کے بعد پھر جیل آ گیا تھا, تو بیمار ہو گیا تھا کافی. اس دوران سزائے موت کافی عمل درآمد ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ڈر خوف تھا. جی جی جی, روز 4 بندے ہینگ ہوتے تھے اس دور میں. تو پھر بیمار ہو گیا تھا اس کی وجہ سے, تو پھر یہ سلسلہ پھر آہستہ آہستہ رک گیا. ابھی جیل خانہ جات پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں نے بھی بہت سے پروگرام کیے ہیں. بہت ٹف تھا, دور تھا. اور اب 4-1 سال سے 4-1 سال سے کافی بہتر ہو چکا ہے. اگر آپ کوئی جرم نہ کریں نا جیل کے اندر, یعنی منشیات نہیں ہے آپ کے اندر, نہیں پیتے آپ یا کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتے, لڑتے نہیں, تو آپ کو کوئی یعنی کہ ڈسٹرب نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں اور دوستوں کی طرح بیہیویئر ہوتا ہے. میرے ساتھ تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, باقیوں کے ساتھ بھی اگر آپ کسی سے لڑیں گے تو پھر اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے نا. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کی حدود میں کوئی ایسا معاملات ہوں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. ہمایوں خالد ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ لائبریرین ہیں.